Just like we have organs in our body performing different functions for us, we have cell organelles inside the cell performing different functions for the cell. Alright, so what is cell organelle that we have to see, and what are the different types of cell organelles that are present in the in our body. तो हम एक बार इनको देखते हैं सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनील्स हैं और हाउ डू वी डिफाइन सेल ऑर्गेनील. सो द थिंग इज लिखेंगे सेल ऑर्गेनील की डेफिनेशन. In a eukaryotic cell, there are many small membrane bound little structures. membrane bound मतलब membrane से covered होते हैं. membrane bound little structures called cell organelles. What we are saying is कि एक यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे छोटे छोटे, सपोज दिस इज यूकैरियोटिक सेल एंड देन यूकैरियोटिक सेल के अंदर दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और इसके अंदर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं that are bound by the membrane, मतलब मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं. they are membrane bound. ठीक है, these membrane bound organelles are called cell organelles, and what is their function? They perform various functions inside the cell. So they perform various different functions inside the cell. So please repeat once your voice was breaking. I'm saying कि जो cell organelles हैं, they are little membrane bound structures that are present inside the cell. Cell के अंदर membrane से covered छोटे छोटे structures हैं. These membrane bound structures are called cell organelles. ठीक है, अभी जो cell organelles हैं इनका function क्या है? They perform different functions inside cell. ये अलग अलग functions perform करते हैं. For example, some of them do digestion, some of them do respiration, some of them just is there to excrete the substances. Just like our organs are there to perform different functions, similarly cell has organelles to perform different functions for it. So is this point clear? Yes or no, everyone? Sachi, Kavish, Yes. Ragun, ठीक है. Yes. ठीक है. Now, alright. So next point that we have to understand is what are different types of cell organelles or what are their functions. तो एक एक करके हम cell organelles पे चलते हैं. First cell organelle is our endoplasmic reticulum. So first cell organelle is the endoplasmic reticulum. Let me show you a bigger diagram of the same diagram that is in the book. तो ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर. दिस इज एन एनिमल सेल. दिस इज एन एनिमल सेल एंड इन इनसाइड दिस एनिमल सेल यू कैन सी दिस सर्कुलर रीजन जिसको इन्होंने ओपन कर रखा है. दिस सर्कुलर रीजन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क रीजन है. दिस रीजन इज व्हाट इज दिस कॉल्ड? न्यूक्लियोलस. राइट, तो हमारे पास न्यूक्लियस है, वी हैव न्यूक्लियोलस एंड सिमिलरली देयर आर अदर सेल ऑर्गेनील्स. देखो जो बाकी चीजें हैं यहाँ पर जो तुम्हें साइटोप्लाज्म में दिख रही हैं, ये सारी सेल ऑर्गेनील्स है. फॉर एग्जांपल दिस वन राइट हियर इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस डायग्राम इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, these are called centrioles. अभी अभी हम देखेंगे इनको. these are centrioles. this is
endoplasmic reticulum. This is ER, endoplasmic reticulum, and the small dots on the endoplasmic reticulum are the ribosomes. This is Golgi body. Golgi body. So we'll study one by one. एक एक करके इन सबका फंक्शन देखेंगे. सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, Golgi body. But this diagram is very important. This is the diagram of animal cell. You have to understand and learn this diagram with labeling. Okay. Now coming back. Excuse me, sir. Yes. Sir, your video is paused. Is my video paused or is it visible? No, sir, it's fine. एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लो हिमांशु. Maybe it will improve. Okay, sir. Okay. Yes. So talking about endoplasmic reticulum, what actually is endoplasmic reticulum? So listen, endoplasmic reticulum is our first cell organelle. Cell organelle का छोटा सा membrane bound structure present in the cytoplasm, right? पहला cell organelle है endoplasmic reticulum, और endoplasmic reticulum को के बारे में हमें details में देखना है कि what it looks like and what is its function. So starting with endoplasmic reticulum, it is membrane bound. It is a network of membrane bound tubes and sheaths. What is it? It is a network of membrane bound tubes and sheaths. मतलब क्या है? अगर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक लाइन में समझाना हो तो हम बोलेंगे ये नेटवर्क है. What actually is a network? नेटवर्क होता है anything which is divided into smaller parts, है ना. हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क मतलब हमारे फ्रेंड्स, तो वी आर डिवाइडिंग आवर सोशल सर्कल इनटू दैट नेटवर्क. जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, मोबाइल का नेटवर्क टॉवर्स में डिवाइडेड होता है. सिमिलरली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, और वो सारी स्मॉलर ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं. दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम फिर से इस डायग्राम में एक बार दिखाऊं तुम्हें, where endoplasmic reticulum is, so you can see over here just nucleus के बाहर ही present होता है. This region is the endoplasmic reticulum, और endoplasmic reticulum में you can see there are tubes. ये क्या है? Tubes हैं. These tubes are joined together. You can see बीच में joined है. यहाँ पे हमें लग रहा है नहीं joined, but they will be joined. पीछे की साइड पे joined होंगी. For example, here you can also see this is the endoplasmic reticulum and these are the tubes of the endoplasmic reticulum. So this network of tubes is endoplasmic reticulum, or endoplasmic reticulum is present just outside our nucleus. Okay, nucleus के just बाहर present है. All right. So now endoplasmic reticulum is divided into two parts. Endoplasmic reticulum को हम दो parts में divide कर सकते हैं. या फिर is of two types ये बोल सकते हैं. Divided ये जब better होगा. Endoplasmic reticulum को हम बोले it is of two types. And what are the two different types of endoplasmic reticulum? One is called rough endoplasmic reticulum. One is called the rough endoplasmic reticulum. And the second one is called the smooth endoplasmic reticulum. What is the difference between rough and smooth endoplasmic reticulum? You have to understand कि rough endoplasmic reticulum के ऊपर ना there are few structures known as ribosomes. So on the rough endoplasmic reticulum you can find, can you see here, these are dots. ये dots इसकी surface को क्या बनाती है? Rough.
anything having a lot of dots in it will have a rough appearance. So this is rough because of the presence of, do you remember what did I tell you, ये dots क्या हैं? Sir, ribosomes. Very good, Prabhu. I told before also that these dots are ribosomes. So rough endoplasmic reticulums is called rough endoplasmic reticulum because it has ribosomes on it. It has ribosomes on its surface. You have to write whatever I write. इसकी surface पे ribosomes होते हैं, which give it a rough appearance. इसकी appearance rough है. And smooth endoplasmic reticulum, on the other hand, does not have ribosome on its surface. It does not have ribosomes on its surface. So it has a smooth appearance. अगर इसके ऊपर ribosomes नहीं होंगे तो ये कैसी appearance दिखाएंगे? They will be smooth. So it has smooth appearance. तो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो अलग अलग हैं. रफ क्योंकि उनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इनके पास राइबोसोम नहीं होते. तुम यहाँ पे देखो, दिस इज आल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये भी तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है. पर डू यू सी, हाँ अभी जूम आउट कर रहा हूँ, पहले ही समझो. क्या यहाँ पे तुम्हें राइबोसोम दिख रहे हैं इस रीजन पे? नो, आई एम नॉट एबल टू सी राइबोसोम. पर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है. तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस पे ये डॉट्स नहीं है. तो थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और थोड़ा बहुत रफ होता है. ठीक है, स्मूथ वैसे यहाँ पे भी दिखा रखा है. दिस इज आल्सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, यस. इज दिस क्लियर कि रफ और स्मूथ में अपीयरेंस में डिफरेंस क्यों है? यस और नो एवरीवन? Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. ठीक है, अब बात आती है कि इनके फंक्शंस पे. ठीक है, सो द थिंग इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम rough endoplasmic reticulum manufactures protein. It produces protein inside. It is the site of protein synthesis. It does not manufacture, but it is the site of protein synthesis या protein manufacture. प्रोटीन जो बनते हैं हमारी बॉडी में सेल के अंदर, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं. और साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, लिपिड यानी फैट्स, जो लिपिड का सिंथेसिस की साइट है, दैट इज आवर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ और स्मूथ में ये डिफरेंस है हमारे पास कि एक के ऊपर राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन वहां पे बनते हैं, और दूसरा यहाँ पर लिपिड्स बनते हैं. लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर फैट्स, ऑयल्स. फैट्स एंड ऑयल्स आर कॉल्ड लिपिड्स. जो हमारे खाने में होते हैं, दैट आर फैट्स एंड ऑयल्स. ठीक है, सो यू टेल मी, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? रफ एंड स्मूथ के बारे में. यस सर. ठीक है, अच्छा अब बात ये आ रही है, डू यू रिमेम्बर हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था? कोई मुझे बताएगा? Yes, sir. बताओ प्रगुण. Sir, cell membrane is a selectively permeable membrane, and sir, it is made up of 75% phospholipids, and the leftover is made up of proteins. ठीक है, वेरी गुड. सो वी स्टडीड कि जो सेल मेम्ब्रेन होती थी, जो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती थी, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन.
phospholipids and proteins which are manufactured at एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है और प्रोटीन्स बनाता है। लिपिड्स और प्रोटीन्स आर मेड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है? इन्हीं चीजों की बनी है। तो कहना है से मेम्ब्रेन जो बनती है, जो सेल मेम्ब्रेन बनती है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बनती है। यस और नो? Yes, sir. So this process is known as membrane biogenesis. Membrane biogenesis is the process in which the cell membrane is made out of the proteins and lipids produced on endoplasmic reticulum. So ये याद रखना है कि which cell organelle helps in formation of cell membrane, that is endoplasmic reticulum. ठीक है? तो एक और चीज बोलिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग शेप में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, और वो अलग अलग शेप में आ सकता है, पर हमेशा उसमें नेटवर्क जरूर होगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन में हमने बोला था इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, राइट। दूसरी चीज, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं। तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंजाइम और हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स और हार्मोन्स कहाँ बनते हैं। तो व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स? You will say again endoplasmic reticulum. So this is all about endoplasmic reticulum. इसके अलावा एक और फंक्शन है। One function of ER is to serve as channels for transport of materials, especially proteins between regions of cytoplasm or between cytoplasm and the nucleus. The ER also functions as a cytoplasmic network, providing a surface for of some biochemical activities in the cell. In liver cells, a group of in liver cells, a group of called vertebrates, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying the poisons and drugs. इस बात को मैं समझाता हूँ, don't worry. So look, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो जान चुके हैं हम एक बार उसको रिवाइज करते हैं, एंड यू विल रिफाइन योर नोट्स। अपने नोट्स में जो तुमने मिस कर दिया उसको तुम बनाओगे। तो पहली बात तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन मुझे कौन सुनाएगा? साची, यू टेल मी। रीड, देख के बोल दो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? So it is a large network of membrane-bound tubes and sheets. Yes, it is a large network of membrane-bound tubules, right? ठीक है। अच्छा, second point. How many types of endoplasmic reticulum are there? ईशान? ईशान, कितने टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? Sir, can I tell? One second. Okay, हिमांशु बोलो तुम। Sir, rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum. Very good, ठीक है। अब what is the function of smooth endoplasmic reticulum, Krish? Sir, the smooth endoplasmic reticulum doesn't have ribosomes on its surface, so it is smooth in appearance and it is a site of lipid synthesis. ठीक है, very good. ठीक है, प्रगुल, tell me what is membrane biogenesis? Sir, membrane biogenesis is the process by which the plasma membrane is formed with the help of lipids and proteins. Manufactured at Endoplasmic reticulum. you have to write that point. उसके बिना नहीं proper होगा ना, क्योंकि endoplasmic reticulum का ही function. Ishan, are you there in the meeting or should I remove you?
ईशान, Ishan, I'm removing you then. Alright. अब हमें और भी फंक्शंस हैं. हमने जो फंक्शंस पढ़े उसके अलावा और भी फंक्शंस हैं. Yes, Ishan. Hello. Sorry, sir, I was not able to unmute myself. I just left the meeting and joined again. Okay. कोई बात नहीं. अभी मैं आगे पूछूंगा क्वेश्चन. तो प्लीज इस पे ध्यान रखना जो भी मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है. अच्छा. मोर सर मेरे फंक्शंस. को पता था. हाँ, मोर फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो कुछ और भी फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. अच्छा, पहले तो हम बता चुके हैं. पहला फंक्शन इज लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस. अच्छा, पहले फंक्शंस ही मोर को छोड़ो, पहले फंक्शंस एक बार लिखवा देता हूँ. तो तुम पहले बोलोगे प्रोटीन एंड दोनों को अच्छे से बताना कि लिपिड कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और प्रोटीन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. तो पहला तुम बोलोगे functions in lipid and protein synthesis. Secondly, it also helps in membrane biogenesis, cell membrane के formation में. This is called membrane biogenesis. Third, it also helps in for production of enzymes and hormones, which are proteins and lipids only. तो प्रोटीन्स एंड हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स बनाने में जो हमारी बॉडी में बहुत काम आते हैं उनमें काम आते हैं. ये तीन फंक्शन तो हमने पहले वाले लास्ट पेज पे पढ़ लिए थे. बट अभी मैंने कुछ और पॉइंट्स पढ़े थे और उन पॉइंट्स में ये मेंशन था मोर फंक्शंस. फर्स्ट पॉइंट, वन मोर पॉइंट वाज दैट एक सेकेंड में दोबारा दिखा दूं तुम्हें. एक फंक्शन था ये, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. तो तुम एक चीज ये समझो, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बाद आने वाले पहला ऑर्गेनील जो न्यूक्लियस के सबसे पास प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ठीक है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो न्यूक्लियस के सबसे पास प्रेजेंट है, दूसरा ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी है. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में अगर कोई प्रोटीन्स या कोई प्रोटीन का ट्रांसफर होना है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है. So the endoplasmic reticulum act as channels for transport of proteins in the cytoplasm and between cytoplasm and the nucleus. You have to write this, that the ER, your endoplasmic reticulum, acts as transport channels between for proteins between cytoplasm and nucleus and also within the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी. तो is this clear? Fourth point is clear? Yes or no? Yes, sir. Third point missed out है. हाँ बोलो. Sir, how? Sir, एक बार explain कर दो what is मतलब how they produce enzymes in our. Look, जो हमारे enzymes होते हैं, let me tell you. जो enzymes होते हैं वो हमारी बॉडी में यूज होने वाले कैटलिस्ट होते हैं. कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है? जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं. तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे वी हैव सम एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, वी हैव एंजाइम लाइक रेनिन, वी हैव बहुत सारे एंजाइम्स हैं. जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर
बायोकैटलिस्ट मतलब they speed up the body reactions, they speed up the reactions in our body. Okay, sir. तो अब बात ये आ रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका क्या रिलेशन, राइट? तो पॉइंट इज दिस कि एंजाइम्स आर एक्चुअली मेड ऑफ प्रोटीन्स. एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोटीन ही होते हैं, ये बोलो तो बेटर हो जाएगा. तो एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स ओनली जो हमारा रिएक्शंस में काम आते हैं. तो एंजाइम क्योंकि प्रोटीन्स हैं तो इसीलिए ये कहाँ पे बनेंगे? दे विल बी फॉर्म्ड ऑन विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर और एससीआर? Sir, RER. Sir, because it has ribosomes on it which synthesize proteins. Yes. अब talking about hormones. What are hormones? Hormones are chemical messengers in our body. Chemical messenger का मतलब क्या होता है? It means that they are used to provide signals and messages from one part of the body to the other part of body. An example of a hormone is a adrenaline hormone. Adrenaline hormone तब रिलीज होता है जब तुम डर जाते हो. कभी तुमने सड़क पे कोई डॉग देखा हो और तुम्हारे अंदर अचानक से एक एनर्जी सी आ गई जिससे तुम भागने लग गए, ऐसा हुआ है? Yes, sir. Sir. है ना? तो वो होता है हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट. मतलब या तो तुम कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हो या बहुत ज़्यादा लड़ाई के मूड में आ जाते हो तो तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन रिलीज होता है. तो वो हमारे ब्रेन को बोलता है, हमारे हार्ट को बोलता है अच्छे से काम करो, लंग को तक मैसेज पहुंचाता है कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ाओ, नर्वस सिस्टम, सब चीज़ों को वो मैसेजेस प्रोवाइड करता है कि अब भाई लड़ने या भागने का टाइम है. तो द हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स and what do? They provide signals to different body parts. ये different body parts तक signals पहुंचाते हैं. जैसे हमारी nerves करते हैं वैसे ही ये भी हमारा hormones भी messenger की तरह काम करते हैं. जैसे nerves messages लेके जाते हैं वैसे ही hormones भी message लेके जाते हैं. ठीक है, अब बात ये आ रही है कि hormones क्या होते हैं? Hormones are made of either proteins or lipids. तो कुछ प्रोटीन्स से बने होते हैं और कुछ लिपिड से, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल. जो हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल किसी का हाई है किसी का कोलेस्ट्रॉल लो है. तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है इट इज हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में काम है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस हार्मोन्स. तो कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अ रिलेटिव ऑफ लिपिड्स. तो मैं ये कह रहा हूँ एंजाइम और हार्मोन्स. एंजाइम का अलग फंक्शन है, बायोकैटलिस्ट है, रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं. हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं. हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. So proteins and lipids are formed on endoplasmic reticulum. That is why we can say that enzymes and hormones are produced on endoplasmic reticulum. Is this point clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. Sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. हिमांशु तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया सबने एंजाइम और हार्मोन के बारे में? Yes, sir. Noted. नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आते हैं. एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अगर तुम ध्यान दो. सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. इन कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ रिएक्शंस भी करता है. इट परफॉर्म्स सम reactions in some biochemical reactions. बायोकेमिकल का मतलब होता है जो हमारे लिविंग सिस्टम में होती है ऐसी रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल
liver, the SER in the liver detoxify मतलब, अच्छा सपोज तुम एक दवाई खाते हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपोज हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये मेडिसिन हमेशा हमारी बॉडी में रहेगी या फिर वो कभी बाहर भी जाएगी बॉडी से? व्हाट डू यू से? Sir, can be through मैं excretion. कह रहा हूँ इफ वी, यस वेरी गुड ईशान, अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कोई केमिकल खा रहे हैं, कोई मेडिसिन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मैंने मेडिसिन खाई क्या वो हमेशा मेरी बॉडी में रहेगी? व्हाट डू यू से? No, sir. इट विल स्टे No, फॉर sir. स्मॉल टाइम, No. स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, यस हिमांशु, साक्षी, कविश। Yes, sir. तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कौन डिटरमाइन करता है, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसका क्या हो जाता है? तो दिस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म है दैट इट कैन रिमूव एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो इट परफॉर्म्स बायोकेमिकल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल जो SCR इन लिवर है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स बनाने, मेडिसिन्स, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग chemicals and drugs. Sir, also pollutants which enter our body through air. Yes, chemicals and drugs. ठीक है, तो इस केस में ये एक स्पेशल फंक्शन हो गया है, और ये स्पेशल फंक्शन सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए नहीं है, ओनली फॉर सर्टेन टिश्यूज लाइक लिवर जिसमें ये काम हो रहा है। तो आर दीज 5 फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Clear, sir. Sir, please explain the fourth one again. 4th पॉइंट। तो द थिंग इज, देखो होता क्या है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क बना के रखता है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास नेटवर्क होने से तो कुछ प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना चाहते हैं या फिर साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ही कहीं और जाना चाहते हैं, तो वो किसके थ्रू जाते हैं? दे गो थ्रू दीज नेटवर्क क्रिएटेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम ये कह रहे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट acts like pipes which transport proteins from cytoplasm to cytoplasm or from nucleoplasm to cytoplasm or nucleus to cytoplasm. Clear, Sachi? Yes, sir. All right. Next is अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 डायग्राम है, एक है प्लांट सेल का और एक है एनिमल सेल का। ठीक है, तो टेक अ पेंसिल एंड स्टार्ट ड्राइंग दीज डायग्राम। मेहनत लगेगी, अभी हमारे पास टाइम है, पूरे 15 मिनट है हमारे पास ये डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए। You have to draw it by your hand and send me before the class ends. ठीक है, जितना अच्छे से बन सके बनाओ, कोशिश करो। सर, ये सेम बनाना है या फिर थोड़ी शेप चेंज कर सकते हैं? हाँ, थोड़ी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं तुम्हें इनको जूम करके दे रहा हूँ so that you will be able to see more clearly. Okay, sir. ठीक है, दिस वन इज द एनिमल सेल एंड दिस वन इज द प्लांट सेल। ये दोनों डायग्राम बनाने शुरू करें। और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे कि अच्छे बने। ठीक है, शेप को चेंज कर सकते हैं, वी डू नॉट नीड टू मेक दिस 3D लुक, जो यहाँ पे 3D लुक दे रखी है। यू कैन ड्रॉ अ सर्कल एंड एक स्मॉलर सर्कल टू शो दैट हम इनसाइड द सेल का पार्ट दिखा रहे हैं। पहले तुम ड्रॉ करो, लेट मी सी योर डायग्राम्स फर्स्ट एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल आल्सो हेल्प यू टू ड्रॉ देम। पर पहले एक बार मुझे देखना है कि तुम कैसे बनाते हो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सर, हाँ बोलो। सर ये ऊपर जैसे वो
और हेयर टाइप बने हुए फ्लैगेल्ला वो भी बनाने हाँ हैं वो बना एनिमल सेल में। हाँ उसको बनाओ। ओके सर।